بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبع بنی آدم بالحق اذا قرب قربانا صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین۔ سو بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک بار پھر ہم تمام کو ماہ ذو الحج کی برکتیں فضیلتیں اس عید کے موقع پر نصیب ہو رہی ہے۔ تاریخ انسانی میں ہماری زندگیوں میں اب کے بار ماہ ذو الحج وہ ماہ ہے کہ جس میں نہ صرف مسجدیں عیدگاہ بلکہ خود حرمین شریفین اور خانہ کعبہ کی رونقیں متاثر ہیں، وہ بھی فقط حفاظت انسان کے لیے۔ مسجدوں کی پابندی ہے یا عیدگاہوں اور جنازگاہوں میں سوشل ڈسٹنس کا ہدایات جاری ہو رہی ہیں، یا خانہ کعبہ اور حج بیت اللہ کے ویزے نہ جاری کرنا ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے اور اپنے اطمینان دل کے لیے کہ یہ کسی نے اسلام کی دشمنی میں نہیں کی، یہ کسی نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے نہیں کی۔ کسی کے ذہن میں ہو بھی صحیح یا کوئی اس پر بعد میں خوش ہو، وہ کوئی انفرادی مسئلہ ہے۔ مسجدیں، جنازگاہ، عیدگاہ اور خود حرم پاک اور مسجد نبوی، اگر اس میں پابندیاں ہیں اور دور دور کھڑے ہونے کا کہا گیا ہے تو یہ انسان کی محبت میں ہے، انسان کی حفاظت کے لیے ہے، اس وبا، اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پھر ایسا کوئی سال نہ آئے کہ جس میں مسجدوں سے روکا جائے، جس میں عمرہ اور حج سٹاپ کیا جائے، جس میں بڑھتے ہوئے روابط کو قانوناً کم کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ ذی الحج اور قربانی کے صدقے اللہ رب العزت آئندہ پوری زندگی میں صحت سلامتی کے ساتھ نہ صرف مسجدیں بلکہ خانہ کعبہ کو پہلے سے دوبالا رونق عطا فرمائے۔ مستقبل ابتدائی کلمات حضرت علامہ مولانا صالح محمد صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک باپ کی ایسی قربانی کہ جس نے اس فعل کو امر کر دیا، اور ایک بیٹے کی ایسی تابعداری جس نے قیامت تک تابعدار بیٹوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سورت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ڈائریکٹ قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر ڈائریکٹ ذبیحہ اور قربانی ایک مفہوم میں شمار ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں ذبیحہ یعنی جانور ذبح کرنا اور قربانی کو سمجھانے کے لیے ایک ہی مفہوم میں بیان کیا، یعنی قربانی سے مراد ہی ذبیحہ ہے، وگرنہ قربانی ایک وسیع مفہوم ہے جسے ہم عید قربان کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔
कुर्बानी अपने अंदर एक बहुत वसी पैगाम है, एक बहुत वसी लफ्ज़ है लुग़त का, और डिक्शनरी को कई सतरें चाहिए कुर्बान और कुर्बानी के लफ्ज़ की तशरीह के लिए। कुर्बानी का ताल्लुक़ फ़कत माह ज़िलहज के 10 तारीख से नहीं है। कुर्बानी साल भर बल्कि मोमिन की ज़िंदगी भर गुजारने के प्रोसेस का नाम कुर्बानी है। पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक ज़िंदगी के हर मौका पर कुर्बानी दरपेश होती है और बतौर इम्तिहान बंदे के सामने होती है। गरीब है या अमीर है, अपनी शान के मुताबिक इसे कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। माह ज़िलहज की कुर्बानी के लिए तो माल चाहिए, रकम चाहिए कि अगर आपके पास मतलूबा रकम है या आपके घर में कोई जानवर है तब आप कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कुर्बानी देने के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमान है तो ज़िंदगी नहीं 24 घंटों में कई बार आपको कुर्बानी देने का मौका नसीब होता है। और इसका मिनिमम लेवल इसी सफ से शुरू कर देते हैं, बैठने की जगह से शुरू कर देते हैं कि इस्लाम कैसे बंदे को कुर्बानी का खूगर बनाता है, कैसे बंदे को कुर्बानी का आदी बनाता है कि मजलिस में बैठे हो और कोई उम्र में तुमसे बड़ा शख्स आ जाए, महफिल में बैठे हो, बैठक हो या सफ हो, और तुमसे कोई मुअज़्ज़िज़ या बड़ा शख्स आ जाए जो दर्जे में किसी हवाले से तुम्हें बुलंद नजर आता हो, उसके लिए जगह छोड़ना भी हुक्म मुस्तफ़ा है, और फिर उसके लिए तकिया पेश करना इबादत जितना सवाब अता फरमाता है। ये नफ्स कुर्बानी का खूगर तब होगा जब आप दूसरे का उठ के इस्तिकबाल करेंगे, अपनी जगह बिठाएंगे, अपना तकिया पेश करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे मजलिस में, महफिल में, और दुनिया देखेगी कि इसने अपने से बड़े बंदे का इकराम किया, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की इज्जत की। अपनी जगह छोड़ना, नफ्स कहेगा क्यों ये कोई बड़ा आदमी है। अपना तकिया देना, दूसरे को तकिया देना सुन्नत मुस्तफ़ा है। दूसरे के लिए जगह छोड़ना अमल सहाबा है। और जो शख्स दूसरे के लिए जगह वसी करता है सफ में और बैठने की जगह में जगह बनाता है, वो दुनिया में मोमिन भाई के लिए ज़मीन पे जगह बनाए, क़यामत के लिए जन्नत में अल्लाह उसके लिए जगह बनाएगा। ये कुर्बानी है। दूसरे के गुस्से के सामने खामोश हो जाना, दूसरे के सामने जब हालात ख़राब हो रहे हों अपने मौक़िफ़ में नरमी इख्तियार किया जाना, ये कुर्बानी का मिनिमम लेवल है। और ज़िंदगी में ये लेवल बढ़ते बढ़ते करबला तक जाता है, बदर तक जाता है कि बंदा फिर खुद अपनी नस्ल इस्लाम पर कुर्बान कर देता है। अपने मुंह का लुकमा किसी और को खिलाना, खुद पानी न पीना और अपने हिस्से का और को पिलाना, ये कुर्बानी की इब्तिदाई मिसालें हैं जो हमें मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की सही हदीसों में मिलेंगे कि जंग में ज़ख्मी पड़े हैं, जान दे दी है और पानी पिलाए आखिरी सांस में है, मगर ईमान ये था, कुर्बानी का जज्बा ये था कि मैं पानी नहीं पीता, वो देखो मेरा भाई मुझसे ज़्यादा ज़ख्मी है, जा उसे पानी पिला दे। पानी पिलाने वाला दौड़ता हुआ दूसरे सहाबी के पास जाता है। जब उसके पास जाता है, खून बह रहे हैं, कट लगे हुए हैं, अज़ाम मुंधमिल है, मगर वो कहता है मैं प्यासा हूँ, मेरा गला खुश्क है, मगर वो देख वो रेत में मेरा भाई मुझसे ज़्यादा ज़ख्मी पड़ा है, उसे पानी पिलाओ। पानी पिलाने वाला तो नेकियां कमा रहा है, वो दौड़ के जाता है कि उसे पानी पिलाए, मगर वहाँ पहुँचता है तो वो शहीद हो चुका है। वापस पलटता है तो जिसने भेजा था वो शहीद हो चुका है। फिर दौड़ के जाता है पहले के पास, आसमान ने देखा कि खुद तो प्यासे मर गए, घूंट पानी न पिया, शहीद हो गए, मगर कुर्बानी का जज्बा ये था कि मरने से पहले अपने 2 घूंट भी भाई को पिलाने का जज्बा दिखा गए हैं। ऐसे जज्बे चाहिए मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए, ऐसी बर्दाश्त चाहिए मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए कि फलां ने सलाम नहीं किया तो मैं क्यों करूं, फलां मुझसे नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं,
यहाँ से बंदे मोमिन की कुर्बानियों का आगाज़ होता है। अजीब अफसोस तो ये है कि ईद कुर्बान के लिए हम 1 साल से पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि इस साल मैं 2 लाख की कुर्बानी करूँगा, इस साल मेरे 7 हिस्से होंगे, इस साल मेरे सारे घर के होंगे, मगर साल भर बाकी कुर्बानियों के बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं होता। न लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने, न दुश्मनियाँ ख़त्म करने, और न ही दूसरे को इज्जत देने की कुर्बानियों से हम ना वाकिफ हैं। इसीलिए ईद कुर्बान की कुर्बानियां बढ़ रही हैं, जानवरों की कीमतें कम हो रही हैं, मगर रोज बरोज इंसान की कीमत कम हो रही है। इंसानियत की इज्जत बढ़ानी है तो इंसान को कुर्बानी करना सीखना होगा। और कुर्बानी फ़कत इन 3 दिनों से मुताल्लिक नहीं है, ये तो एक रिफ्रेशर कोर्स है, ये तो एक ट्रेनिंग पीरियड है। कुर्बानी में जान, माल और औलाद, मैंने जो आया मुबारक तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वतलु अलैहिम, मेरे मुस्तफ़ा बताइए इनको, तिलावत फरमाइए। क्या? आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा इनको सुना दीजिए। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि आदम के दोनों बेटों का किस्सा इनको सुना दीजिए। वो कैसा किस्सा था? कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हाबील और काबील, जो रूए ज़मीन पर पहले 2 बेटे थे, उनकी बात बताई। हाबील और काबील दोनों को बाप ने दर्श दिया कि अल्लाह के हुजूर कुर्बानी किया करें, अल्लाह के हुजूर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करें। ये कुर्बानी क्या है? कुर्बानी फ़कत जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं है, अल्लाह के हुजूर झुक जाने का नाम है, अपनी मर्जियां ख़त्म करने का नाम है, अल्लाह के सारे हुक्म को 100% तस्लीम करने का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का अपना अपना फील्ड था। आपके फील्ड होते हैं ना, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसान। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का अपना अपना फील्ड था। एक रेवड़ चराता था, बकरियां, गाय, दुम्बे जो भी थे उस वक्त मुयस्सर, उनको चरा के रोजी कमाता था। और दूसरा बेटा खेती बाड़ी किया करता था। कोई तो इसमें अजीम दर्स है कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, मेरे मुस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम की बात, बेटों की बात बिलहक पूरी पूरी इनको बता दे, सच सच इनको मुकम्मल बात बता दे कि क्या हुआ था। इज़ा कर्रबा कुर्बानन, जब उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी की। कुर्बानी कुर्ब से निकला है और उससे मुराद अल्लाह के करीब होना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। पैगंबर के बेटे थे, मगर अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी कीजिए। क्या? अपना बेहतरीन माल रब के हुजूर हाजिर कर दीजिए। एक बेटे ने अपना माल पेश किया, दूसरे बेटे ने अपना माल पेश किया। एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने अपने रेवड़ में सबसे बेहतरीन दुम्बा चुना और अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दोनों पैगंबर के बेटे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। एक की कबूल हो गई, दूसरे की कबूल न हुई। वहाँ से जंग का आगाज़ हो गया। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का हुक्म तो दिया है, कुर्बानी आपके और मेरे ज़िम्मे है, मगर किसकी कबूल होती है ये नीयत पर डिपेंड करता है, ये माल पर डिपेंड करता है कि आपने हलाल से जानवर ख़रीदा या हराम से ख़रीदा है। आपकी नीयत दुनिया को दिखाने की है या अल्लाह के करीब जाने की है। गोया जब बंदा अल्लाह से दूर होता है, दूर करने वाली भी कुछ चीज़ें हैं। कभी माल बंदे को अल्लाह से दूर कर देता है, कभी औलाद बंदे को अल्लाह से दूर कर देता है, कभी ये नफ्स बंदे को अल्लाह से दूर कर देता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदे को अल्लाह से दूर करती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं। वो जो चीजें जो बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं वो नमाज है, वो रोजा है, वो हज है, वो ज़कात है। फिर कोई कमी रह गई तो कहा अब कुर्बानी कर, अपना माल पेश कर, अपनी औलाद पेश कर, अपना वक्त पेश कर। उसके लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली सूरत में बताया कि 10 ज़िलहज को अगर तुम्हारी ताकत है तो अल्लाह के करीब होने के लिए कुर्बानी कीजिए। और वो कुर्बानी क्या है? वो आज हम बकरा ज़ुबा करते हैं, दुम्बा ज़ुबा करते हैं, गाय ज़ुबा करते हैं ताकि अल्लाह के करीब हो जाएं। कसीर तादाद में रूए ज़मीन पर गोश्त ही गोश्त नज़र आता है और लगता यूं है कि दुनिया में इस वक्त हर तरफ गोश्त ही गोश्त है। मक्का से लेकर सुल्तान खैल तक कोई ऐसी बस्ती नहीं होगी जहां कलमा पढ़ने वाला होगा और इस रोज़
کثیر گوشت نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے توجہ چینج کرائی اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں تمہارا قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تو تم خود کھا جاتے ہو، اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، وہ تو زمین پر بہ جاتا ہے، مگر یہ گوشت اور یہ خون تمہیں رب کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قربانی کے پاس کھڑے ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو حکم دیا کہ قربانی کے پاس کھڑے ہو، اس کا جب خون کا قطرہ گرتا ہے زمین پر پہنچنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رب کے پاس خون تو نہیں پہنچتا، مگر خون تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے۔ اور گوشت رب تک نہیں پہنچتا، گوشت یا تمہارے پیٹ میں جاتا ہے یا تمہاری اولاد یا رشتہ داروں یا غریبوں، وہ جب کسی کے پیٹ میں پہنچتا ہے کھاتا کوئی اور ہے اور گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت کا کمال ہے تو سارے کسائی بے گناہ ہوں گے، وہ تو روز لوگوں کو کاٹ کاٹ کے جانور، کسائیوں کے گھر میں روز خون بہتا ہے، پھر تو وہ گناہوں سے معاف ہوں۔ گویا یہ گوشت اور خون کے پیچھے نیت اگر قربانی کی ہو تو چھوٹا سا بکرا ذبح کرتے ہیں اور اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں نیت چاہیے جس کا قرآن نے ڈیمانڈ کیا۔ وقت پورا ہو گیا، اعلان کے مطابق آگے آگے صفوں میں آئیں، قریب ہو جائیں۔ اور اس کی آج کی گفتگو کا جو پیغام ہے کہ قربانی کے لیے آج چند مفتی، وہ جو جسے فیس بک یا مفتی کہتے ہیں، یا جدید لبرلزم کا شکار، کہ بجائے 2 لاکھ کی قربانی کی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے، اور یہ ہر دفعہ کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو فتوے آ جاتے ہیں عمرے پہ کیوں جاتا ہے، یہی کسی غریب کی شادی کر دے، حج پہ جا رہے ہیں 5 لاکھ کی رشتہ داروں کو دے دے، اللہ تمہارے حج اور عمرے کا محتاج نہیں ہے۔ ہر سال کانوں میں آوازیں آتی ہیں ماہ میلاد مصطفیٰ کا آتا ہے تو یہ کیوں جلسہ کر رہے ہیں، یہ کیوں لائٹنگ کر رہے ہیں، یہی کسی غریب کو دے دے۔ اسلام نے ہر چیز کا بندوبست کیا ہے، چونکہ ابھی جو میں پیغام دینے لگا ہوں اس قربانی کا ہے۔ اس قربانی کے موقع پر کہا جاتا ہے کیا ضرورت ہے اتنی بڑی عید کرنے کی، اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے، یا کسی غریب کی مدد کی جائے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، وہ درست ہے۔ میں آپ کے سامنے بڑی معروف مثال رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک عید نہیں کی۔ جب سے اللہ کا حکم آیا آقا نے ایک عید نہیں کی، کم از کم حضور نے 2 عیدیں کی ہیں، 2 دمبے آقا نے ذبح کیے ہیں، ایک حضور اپنی طرف سے، باقی دوسرا دمبا ساری امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے ساری۔ اور وہ وقت آیا کہ تنہا محمد مصطفیٰ نے 10 اونٹ ذبح کیے، عید والے دن تنہا میرے آقا نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ کیا میسج تھا؟ کیا اس وقت مدینہ میں کوئی غریب نہ تھا؟ کیا اس وقت ہر کوئی امیر تھا کہ حضور 10 کی بجائے 8 ذبح، 9 ذبح، 1 ذبح کر دیتے؟ مگر یہاں تو نبی کو مشورے دینے والے پیدا ہو گئے۔ میرے آقا نے 10 اونٹ بھی قربانی پر ذبح کیے، اور عین وہی دن تھے کہ جب قربانیاں ہو رہی تھی، آقا نے قربانی کی سنت کو نہیں روکا کہ چلو پہلے غربت ختم کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو گھر بنا کے دیتے ہیں، پہلے بیٹیوں کو شادی کر کے دیتے ہیں، پھر قربانی کریں گے۔ حج اور قربانی اٹ سیلف ایک بنیادی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی طاقت ہے اور وہ قربانی اگنور کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، گویا اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ کیا حسین تمثیل کسی نے بیان کی ہے حدیث کی روشنی میں۔ حضور تشریف فرما ہیں اور ایک عورت آتی ہے پردے میں، یا رسول اللہ، چندہ کرنے والے اپنی ڈیوٹی شروع کریں، یا رسول اللہ میں آپ کے کہنے پر اسلام قبول کیا، آپ کو میں مالک بناتی ہوں، میری شادی جس سے کرا دیں، آپ میرے نفس کے مالک ہیں، جس سے میری شادی کرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس خاتون نے یہ خواہش ظاہر کی تو ایک غریب صحابی رسول تھے، کنوارے تھے، فرمایا یا رسول اللہ کنوارا ہوں، اس لڑکی سے میری شادی کرا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے حق مہر کے لیے؟ فرمایا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ پوچھے ہوگے کچھ نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کوئی انگوٹھی تو تیرے پاس ہوگی؟ کہا نہیں ہے۔ سونے چاندی کی چھوڑ،
घर में कोई लोहे की अंगूठी है, वो घर गया और अपनी कुटिया छान मारी, लोहे का कोई रिंग भी उसे न मिला। अफसुर्दा हो गया, या रसूल अल्लाह लोहे की अंगूठी भी मेरे घर में नहीं है। एक चादर है वो जिसमें छुपता था, ये चादर का फिर तुम खुद क्या पहनोगे? आधी इसे दे दें, आधी मुझे रख ले। कहा नहीं, ये चीज़ खराब हो जाएगी। वो मायूस हो गया और सर झुका के जाने लगा। पीछे से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवान कुछ कुरान याद है, कुछ सीने में आयतें महफूज की हैं, तूने कुरान हिफ्ज किया है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, फलां फलां सूरतें याद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुरान की आयतों के बदले तेरी शादी करा देता हूँ, तेरा हक महर यही है, तेरा जहेज यही है। सहाबी रसूल को खड़ा किया और उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की। उसके सवाब के बदले, कुरान की आयत के बरकत के बदले फरमाया, ये जो आयतों का बदल है, ये जो आयतों का सवाब है, इसके बदले अल्लाह इस बच्ची का निकाह इस सहाबी रसूल से करते हैं। एक तो कुरान की तिलावत की अहमियत बताई कि ये न समझो कि कुरान तिलावत हो गया तो उसकी कोई ताकत भी नहीं, दुनिया की कीमती तरीन चीज है। बात ये समझाई कि ये गुर्बत है एक तरफ, बिल्कुल उसी तरफ उसी माहे जिलहज में आका कुर्बानियाँ फरमाते हैं, आका 10-10 ऊँट ज़बा करते हैं। गोया गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम अपनी जगह पे है, मगर कुर्बानी की अहमियत अपनी जगह पर है। इसे क़यामत तक ज़िंदा रहना होगा, इसे ज़िंदा रखना होगा, इसी के लिए कमाना होगा। जितना खूबसूरत जानवर ढूंढेंगे, इसमें रिया नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए 2 लाख का बकरा भी ढूंढ दें तो इसराफ नहीं है कुर्बानी में। जितने ज़्यादा हिस्से शामिल कर लें, इसराफ नहीं है। हाँ, साल भर दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट सुन्नत पूछना चाहता है तो वो दुम्बा है, दुम्बे के अलावा बाकी कुर्बानियाँ मना नहीं है। बकरे कर सकते हैं, गाय कर सकते हैं, भैंस की कुर्बानी किसी सूरत मना नहीं है। अच्छा है कि गाय की करे। अगर गाय की कीमत में कोई अच्छी भैंस मिल रही है, मुयस्सर है, या अपनी पाली हुई है, तो कट्टे कट्टी या भैंस की कुर्बानी किसी सूरत मना नहीं। और दोस्तों आखिरी बात कि सींग से लेकर खुर तक जो चीज़ भी इस्तेमाल होती है उसकी नाकदरी की इजाज़त नहीं है। अगर किसी दौर में सींग बिकता है तो सींग भी फेंकने की इजाज़त नहीं है। किसी दौर में चूँकि सींग खाया नहीं जाता, अगर किसी दौर में सींग से कोई चीज़ बनती है और उसकी कीमत है तो उसको भी गांद की ढेर पर फेंकने की इजाज़त नहीं। किसी दौर में गाय के नाखून बिकते हैं तो कुर्बानी के नाखून ज़ाया करने की भी इजाज़त नहीं है। चाहे जाए कि और चीज़ें, जो चीज़ें मना हैं, वो पेशाब वाली जगह हैं, वो किसी सूरत में खाने की इजाज़त नहीं। कपूरे न खाया करें। ओझरी गंद की वजह से मकरू है, क्योंकि ओझरी में गोश्त है। अगर 100% आपने गंद और बदबू साफ कर दी तो फिर ओझरी वाला गोश्त भी खा सकते हैं। आंतों में चूंकि गोश्त नहीं है, आंतें झिली हैं, इसीलिए आंतें साफ करने के बाद भी वो जो पतली आंतें होती हैं उनकी इजाज़त नहीं, क्योंकि उनमें गोश्त नहीं, वो बारीक सी झिल्ली होती है, कागज से भी पतली। और जिस ओझरी में गोश्त हो उसे जब 100% साफ कर लेंगे तो उसकी कराहत ख़त्म हो जाती है। वह कुर्बानी का कोई हिस्सा नाकदरा नहीं है। और चमड़ा पिछले 2-3 साल में एक साजिश के तहत इस इंडस्ट्री को जवाल की तरफ, कुर्बानी की खालों की कीमतें जानबूझकर गिराई गई हैं और आइंदा चंद सालों तक गिराई जाएंगी। इसे ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है कि फेंक दें। अगर आपकी जिम्मेदारी है ज़रूरतमंद तक साफ पहुंचाना, जो ही ज़बा कर लें, उल्टा करके उसे नमक लगा लें तो वो 8-10 घंटे तक साफ रहेगी। उतार के फेंक दे कि उठा लेंगे अंजुमन वाले, उठा लेगा कोई गरीब, ये नाकदरी है, ये कुर्बानी का हिस्सा है। जिसको भी दें मगर साफ करके, उसका ख्याल करके। नमक लगाने में 5 मिनट लगेंगे, किसी एक बंदे को कहे आप नमक लगा ले, फिर 2-4 घंटे पड़ी भी रहे, तो ये जानवर से मोहब्बत है, ये किसी मदरसे या जमात से नहीं, ये अल्लाह की हुजूर दी हुई कुर्बानी से मोहब्बत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुर्बानी का मफ़हूम समझने और साल भर कुर्बानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी तक देख